the science behind how our brain learns new skills. The human brain is primarily composed of about 86 billion neurons. A neuron is a cell that acts as a messenger sending information in the form of nerve impulses like electrical signals to other neurons. Do you know what happens with your brain when you learn new skills? When your brain learns new skills, whether it is learning a new language, learning a new software, programming, cooking, or anything else, important changes take place in your brain, and that is a creation of new connections between your neurons. In order to learn any skill set, you must first create and strengthen new neural pathways in your brain. Just think about the time when you first learned about car driving, how it was difficult for you in the first place. As you practice more and more, it becomes so much easier for you that you don't even have to consciously think about car driving. And that's our brain's muscle memory. Your brain controls everything your muscles do by activating specific neural pathways for each and every movement. The neurons that fire together wire together. Let's say, for example, you're learning a first time car driving. Your brain doesn't have a specific pathways for this car driving moments. You need to create it. So for your brain, it is like a dense forest with no clear pathways from spot A to spot B. As you learn about the functions of the car driving, you create the trail in the forest from spot A to spot B. Now you have created those neural pathways in your brain, but you still can't drive a car properly because your neural pathways are new and aren't very much clear. In order to improve your car driving, you must practice a lot to refine and strengthen those pathways in your brain. For this, you need to practice it repeatedly, repetitions after repetitions. As you gradually increase your practice, now it is easier for you to drive a car and you don't even have to think about the functions of the car driving. This happens because your neural pathways for car driving become stronger after each practice and repetitions. Now, your neural pathways from spot A to spot B for car driving become so clear and fast that you don't even have to think about the functioning of the car driving. At first, you may just trial as a beginner, and after enough practice and repetitions, now your trial becomes the clear highway and you can drive a car without even thinking about its function. It's just automated and becomes your second nature. The neuroscientist calls this neuroplasticity. Neuroplasticity means that your brain has the ability to create and strengthen the neural pathways. I hope that you love this video and you also learn about the science behind how our brain learns new skills. So ये वीडियो को मैं यहाँ पे सम अप करना चाहूँगी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे वाइट बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी पूरा डायग्राम क्रिएट किया हुआ है, सो एक बार वो भी चीज़ समझ लेते हैं. राइट, सो द साइंस बिहाइंड हाउ आवर ब्रेन लर्न न्यू स्किल्स. ये ह्यूमन ब्रेन है, ये जो डॉट जो है वो न्यूरॉन्स हैं. सो बेसिकली न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन इज़ अ सेल दैट एक्ट्स एज अ मैसेंजर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द अदर न्यूरॉन्स. अभी मुझे ऐसा ख्याल आया कि मुझे राइटिंग करना है, तो उसके लिए एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसमिट करेगा कि राइटिंग मीन्स पेन चाहिए, राइट, किस पे राइट करना है. वैसे कनेक्शंस बनाएंगे न्यूरॉन्स, राइट. सो यहाँ पे मैंने लिया है कि न्यू लैंग्वेज अगर आपको कोई सीखनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच. So your brain has the ability to create and strengthen the neural pathways.
ये न्यूरल पाथवेज मैंने यहाँ पे ये जो डिज़ाइन किया हुआ है तो न्यू लैंग्वेज के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, कुकिंग के लिए। तो वैसे आपके ब्रेन के पास ये एबिलिटी है कि वो नए 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 कनेक्शंस बना सकता है, राइट। सो फॉर लर्निंग अ न्यू स्किल्स यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द न्यू न्यूरल पाथवेज इन योर ब्रेन। अभी आपको मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। पहले ये मसल मेमोरी क्या है ना, वो एक बार देख लेते हैं, राइट। मसल मेमोरी ये ह्यूमन ब्रेन है, और यहाँ पे मैं ब्लैक से इंडिकेट किया हुआ है कि ये मसल मेमोरी है। अभी मसल मेमोरी क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, पाइथन और मे बी वर्डप्रेस, व्हाटएवर इट इज़। सो उसके लिए आपको पहले तो वो स्किल सीखनी पड़ेगी। जैसे ही आपने बहुत ही अच्छे से सीखा ना, तो आपके ब्रेन के पास ये मसल मेमोरी ने एक बार स्टोर हो गया है, तो आपको दोबारा वो चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक बार कार ड्राइविंग सीख लिया, तो भी आपको वो दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टोर्ड है आपकी मसल मेमोरी में। तो आप अगर 10 दिन बाद, एक महीने बाद वो चीज़ वापस करोगे ना, तो भी आपको ब्रेन को पता है कि वो चीज़ कैसे करनी है। तो ये हमारे ब्रेन की मसल मेमोरी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कार ड्राइविंग एग्जाम्पल जो आपने वीडियो में देखा। तो यहाँ पे मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो वो एक बार समझ लेते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम कार ड्राइविंग सीखना चाहते हो, आपने सीखा नहीं है आज तक, पहले आपने कभी ट्राई भी नहीं किया है, तो वहाँ पे आपके ब्रेन में क्या प्रोसेस होगा कि आपके पास जस्ट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे कोई न्यूरॉन का कनेक्शंस नहीं बना हुआ है, आपके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि कार ड्राइविंग का फंक्शनिंग कैसे होता है, एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है, गियर है, बट कनेक्शंस नहीं बने हुए हैं। नाउ यू हैव ट्राइड वंस, कि आपने सोचा कि चलो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, कि आपको सीखना है कि कैसे कार ड्राइविंग होती है। तो वहाँ पे आपके ब्रेन में क्या होगा कि कनेक्शंस, जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्शंस कार ड्राइविंग के लिए बनाएगा, राइट। सो योर ब्रेन स्टार्ट्स क्रिएटिंग न्यू न्यूरल पाथवेज फॉर कार ड्राइविंग, राइट। नाउ आपने एक बार ट्राई किया कि एक्चुअल में आपके पास ब्रेन के पास जो इन्फॉर्मेशन है, बट आपने अभी ट्राई किया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रेन न्यूरल कनेक्शंस बनाएगा, न्यूरल पाथवेज फॉर कार ड्राइविंग। नाउ आपने क्या किया कि प्रैक्टिस की, बहुत ही प्रैक्टिस की एंड रेपिटेशंस किया। नाउ अभी ये जो ब्रेन है उसमें फंक्शंस क्या होगा, नाउ योर ब्रेन क्रिएट्स एंड स्ट्रेंथन दोज न्यूरल पाथवेज फॉर कार ड्राइविंग। अब आपको कार ड्राइविंग अच्छे से आ गया, बट आपको उसमें मास्टरी लानी है कि कार ड्राइविंग मुझे ऐसे सीखना है कि चाहे मुझे कोई भी रोड्स दे दो, कितना भी ट्रैफिक हो और कोई भी गाड़ी दे दो, बट मैं इतना, मेरी मास्टरी होनी चाहिए ना कि मैं ये कार ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर पाऊँ। तो आपने ग्रेजुअली इंक्रीज किया अपना प्रैक्टिस और रेपिटेशंस आफ्टर रेपिटेशंस किया। डिफरेंट हाईवेज, ट्रैफिक कितना भी हो, आपने टर्निंग पॉइंट्स डिफरेंट ट्राई किए, पहाड़ पे जाके ट्राई किया कि कार ड्राइविंग कैसे होता है। नाउ अब क्या होगा, योर ब्रेन हैज़ created and strengthened those neural pathways in a very strong manner that आपको कोई भी हाईवेज दे दो, कोई भी कार दे दो, बट आप इतने अच्छे से वो चीज़ कर पाते हो कि लाइक किसी को लगता है कि आप इसमें मास्टर हो, राइट। सो फ्रॉम बिगिनर टू मास्टरी यू रीच दैट लेवल, राइट। सो ऐसे हमारा ब्रेन में ये फंक्शंस होता है, और जब भी आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो तो ये ध्यान में रखें कि आप वो चीज़ बहुत ही अच्छे से सीखो, राइट। सो इसे क्या बोलेंगे हम, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इन द साइंस लैंग्वेज दैट इज़ वन वर्ड and it is called as neuroplasticity, which means that your brain has an ability to create and strengthen the neural pathways, right? So ये वीडियो में हमने ये सीखा कि एक्चुअल में साइंस क्या है behind learning any skill set, how our brain learns new skills, right? So आप जब भी कोई भी चीज़ सीखते हो, या आपको नई लैंग्वेज सीखनी है, प्रोग्रामिंग है, कुकिंग है,
या तो फिर एनीथिंग एल्स, बट आप ऐसे सीखो कि जो आपके न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, राइट। मिस्टेक हो रही है काम में बट उसको करेक्ट करते जाओ तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। मैंने मेरा एक वीडियो बहुत पहले ही अपलोड किया था, हाउ टू बिल्ड सक्सेसफुल हैबिट्स, more or less it is a connected video, so don't forget to watch that video, right। so मैं यहाँ पे एक मेरा ही एग्जांपल देना चाहती हूँ मेरा राइटिंग का। तो मैंने मेरा जब राइटिंग चालू किया था तो मेरा भी बहुत मिस्टेक होता था, तो मैं वो सारी मिस्टेक करेक्ट करती चली गई, राइट। सो मेरे जो अभी न्यूरल पाथवेज क्रिएट हुए हैं तो वो बहुत ही स्ट्रेंथन हो गए हैं, राइट। जब भी आप कोई भी चीज़ सीखो ना तो उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं है, उसको आपके बिहेवियर में इंटीग्रेट कर दो। जब भी मैं मेरा राइटिंग है करती हूँ तो मेरे दोस्त लोग के साथ मुझे बात करना तो वो मैं बहुत ही प्रिसाइजली मैसेज राइट करती हूँ। कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट भी डालने हैं तो मैं प्रिसाइजली राइटिंग करती हूँ। फिर अगर मेरा जॉब में कोई भी वर्क है तो वहाँ पे मेरा कंटेंट राइटिंग का पार्ट आता है तो वो उसमें भी मैं बहुत ही ध्यान से और प्रिसाइजली वो राइटिंग करती हूँ। तो आपके बिहेवियर में वो चीज़ ऐसे इंटीग्रेट हो जानी चाहिए कि वो नेचुरली आप में से वो स्किल्स बाहर निकल कर आए और किसी को लगे कि यार इसका राइटिंग कितना अच्छा है। अच्छा होगा ही ना, क्योंकि इतनी बार जो प्रैक्टिस की है, right। So make sure that you practice a lot, repetitions after repetitions after repetition, until and unless you become the master of that skill set, right। I hope that you love this video, and please don't forget to like, comment and subscribe, because your subscription matters to my channel, to grow my channel, and it helps me to add more values to my video. And I will see you in the next video. So thank you guys for watching.